Good morning, everyone. Am I audible? Yes. Morning. Okay, thank you. Just give me a second. Let me pull up the topic presentation. Just give me a second. You can see my screen. Yes. Okay. Uh, okay, so I think the topic which I think Damni has scheduled for today is I think aptitude. So okay, so uh, what we'll do in this session. So sometimes companies when they are especially when they want to shortlist certain candidates for the interview, they might conduct a kind of an aptitude test where they might give a set of questions from different topics, and these topics could vary. Uh, so suppose these could be questions like speed and distance, probability, volume, surface area. It's like Before a before going in this aptitude test, when
we are planning for this presentation part, because the last week it was totally messed up the things by what we have discussed and what Damni has told us. It's totally messed up. What messed up? Like we were discussing on 13th, there will be means whatever companies we have selected, we have to give a presentation based on whoever is means ready for that. Actually, they 13th scheduled को a होगा, level 1 exam. 13th को होगा ऐसा नहीं बोला था मैंने, बोला था आप 13th या 14th means just a planning we had planned it. So Suddenly we came to know that you have to do this theoretical test of this 3 hours and all. हाँ वो मुझे भी नहीं पता था, so that's what she told me, but ठीक है, that means आपके लिए presentation के लिए आपको time मिल गया, because presentation now probably would be happening in another couple of weeks, or probably next week, I don't know, but the objective was that you start preparing from the presentation, assuming it's 13th and 14th. That's what I remember. I think I said, so that we don't wait for the last day for that email to come for the presentation. Now, in terms of level 1 exam, so I'm not sure why वो भी रखा, but ठीक है. And then I understand, I think you guys requested for a little more time, which I think has accordingly been, I think, rescheduled, correct? I mean, still we are not aware of these schedules. In level 1 may what test you are being there, whether this presentation is part of this whole evaluation or not. Yes. So मुझे जो दामी ने बताया, अभी जो आपका है वो लेवल 1 एग्जाम है, जो प्रेजेंटेशन है वो भी होगा, बट वो आगे होगा. सो प्रेजेंटेशन इज योर फाइनल is a level 3 evaluation, let me put this way, okay, if that helps you to understand. So what I understand that आपका level 1 का एग्जाम लिया ही नहीं गया था अभी तक, तो इसलिए शायद अभी शेड्यूल किया है. okay. So लेवल 1 एग्जाम जो भी है नेक्स्ट वीक, या जो भी डेट को रखा है, दैट्स नॉट अबाउट द प्रेजेंटेशन, बट प्रेजेंटेशन भी होगा. सो इट्स जस्ट कि वो शायद उसके आगे होगा, जो भी डेट कम्युनिकेट होगी. बट अगर आपने 13th 14th के हिसाब से बना के रखा है, so then now when you will get an email that you have a presentation, you would be in a better position, so that at least most of the work or some of the work for your presentation probably should be done. ठीक है. तो लेवल 1 एग्जाम जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं है दीपक, प्रेजेंटेशन भी है. Actually we are not aware कि what is their thought process कि how to devote for this, for unplanned things. सही बात है. Okay. मेरे लिए भी थोड़ा सा इक्वली सरप्राइजिंग था कि वो एकदम से कैसे आ गया, बट ठीक है. Okay, means just I was Today asking also there was a scheduled call at 9:45. I'm not sure it has been communicated to you. no. Placement. क्या आज कॉल है? Yeah, at 9:45 they told that there would be a placement has been aligned placement call. Because we are not aware, because in the schedule Parul, they have not informed. If you check Deepak, the last ping in the group they sent is Damini sent is this only.
Actually, this is Because the permission is democracy to has left from the group actually, yeah. Yeah. because she has blocked us not to not to communicate. I don't know. Okay. Okay. ठीक है. I Because I because don't we know are what. not aware 9:45, because now Parul is saying that 9:45 there was a communication. After that, this is whether this is overlap to that or still it is persisting. We are not aware. Okay. I don't know whether what the placement they are giving it, placement assistance and all that. तो ठीक है. So एक बार 9:45 देख लेंगे. Honestly मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है उसका, and I hope Deepak you understand कि No, that I know. I'm मैं just दामनी को तो just फोन कर putting सकता हूँ to because I'm just putting in because I'm where we should put our grievances. The only way is you. but Last हाँ Sunday also they committed that they will join on Sunday too regarding our concerns, but no one showed up. अच्छा. Okay. सरप्राइजिंग ऐसा होना नहीं चाहिए. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है. सो आप एक बार दामनी को फिर या तो ईमेल डाल दो या asked मैं Damini उसको about बोल this, देता हूँ. that why we have been blocked in Esther. It is a management's call. Okay, such calls have been taken by management. It's great. अरे मैंने कहा था, उसने कहा क्या कि टाइम अप हो गया है बैच का, इसी वजह से ब्लॉक कर दिया गया. चलो ठीक है. दामनी से बात करता है. विल टेल हर टू स्पीक एंड आल्सो यू गाइस आल्सो इफ तो आप ईमेल डाल दो या जो भी है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ व्हाई दिस इज डन. ये ब्लॉकिंग का मुझे नहीं पता, बट ठीक है. There could be some reason because of this being done. ठीक है. So let's see अगर 9:45 if Damni joins, so we can ask her also. ठीक है. और वो प्रेजेंटेशन और लेवल 1 का जो एग्जाम है वो इज दैट क्लियर नाउ? प्रेजेंटेशन का आपको हाँ लिख के आएगा अलग से. either the title would be final presentation or it would be प्रेजेंटेशन. ऐसा टाइटल लिख के आएगा. इट कुड बी ऐसे भी लिखा हो सकता है लेवल 3 एग्जाम. ठीक है. तो एक वो होगा और एक मॉक भी होगा और एक लेवल 2 एग्जाम भी होगा अगर आपका अभी तक वो भी नहीं हुआ है तो. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जनरली साइड बाय साइड हो जाना था. तो अगर नहीं हुआ है तो वो भी होगा. तो ठीक है. Don't worry. Why I put this question to you is that I thought now the things have changed. There will be no presentation part. So that's why I want is that the communication that you've received? Is that the communication you've received? No, because level 1, the confusion has created from last week. Just I want to clear it. No, it's not communication because but ये भी communication नहीं होगा formally from them. हाँ. तो अगर ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है कि प्रेजेंटेशन नहीं होगा या प्रेजेंटेशन हटा दिया गया, तो आई डोंट थिंक वी शुड इंटरप्रेट लाइक दिस. इट विल नॉट हैपन. इट्स जस्ट कि उससे पहले दूसरा रखा हुआ है जो पहले ये हो जाएगा. आई थिंक फिर वो शेड्यूल होगा. सो वैसे आप को करना चाहिए, बट फिर भी अगर डाउट है आई थिंक वी कैन आस्क हर. Experience with them, I'm a bit confused. That's why I put this question. I don't know scheduling में तो ठीक है. Let's ask her. ठीक है. 9:45 if she joins, जो आपका डाउट है तो वो ये कर लेंगे. That should not be too much of concern. But
बट जो शेड्यूलिंग को रिलेटेड या जो भी है ना, आई अंडरस्टैंड आप मुझे रेज करो, बट मुझे भी उस तामनी को ही पास ऑन करना पड़ेगा, ये एड्रेस करो। तो लेट्स ट्राई एट बोथ द एंड, ठीक है? आप लोग भी रेज करो, मैं भी उसको बोलता हूँ कि आप लोगों से एक बार जो डाउट है, बट एज ऑफ नाउ माय सजेशन रादर देन इसकी, ऐसा मत रिज्यूम करो कि प्रेजेंटेशन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद लेवल 1 एग्जाम। डोंट it's not right way to interpret. It should be that level 1 भी होना था, ये भी होना था, तो पहले एक ये करा है, आपको टाइम मिल रहा है तो फिर उसके बाद वो आएगा. That is the way that you should interpret. Yes, because this level 1 exam is a sort of theoretical what you have gathered and all. Because the most important is that presentation from learning एक point. presentation भी है और एक mock भी होगा, ठीक है? So again just trying to give you heads up that again उसका भी confuse मत हो जाना. तो प्रेजेंटेशन और मॉक दो अलग अलग चीजें हैं. मॉक विल बी लाइक योर इंटरव्यू, ठीक है? उससे पहले एक इंटरव्यू प्रेप सेशन होगा, तो उसमें बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे होगा. सो ठीक है. Yes. The foggy communication should not be there. There should be a clear communication. Will not be confused then. हाँ, बट दीपक, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो कम्युनिकेशन का हमें दामनी को बोलना पड़ेगा. मैं बिकॉज आई एम नॉट सेंडिंग यू कम्युनिकेशन, सो मुझे नहीं विजिबिलिटी मिलता कि क्या चेंज आ रहा है. लेट्स ट्राई एंड रिक्वेस्ट हर, दैट इज व्हाट आई कैन एडवाइज यू ऑन दैट पार्ट. That's okay. अरे मैं कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन के बारे में जो है ना, वो ये इतना सिलेबस और एलएमएस में भी दे रखा है कि 20 स्लाइड तक बनाना है, प्रिपेयर करना है उसे, बट ये उसे दे सेंड भी करना है, इतना दे रखा है. ठीक है फजूल, Hello. आई थिंक हाँ ठीक है, आई हर्ड यू. सो लेट्स वेट दामनी टू क्लैरिफाई. ठीक है, तो अभी के लिए करें. otherwise And no, we are 9:45 still left with the part of M&A and macro part of Excel, right? As per the content. macro part of Excel. So अगर आपको Excel में macro सीखना है तो मैं बता दूंगा, but that is not what we use in modeling. ठीक है, अगर आपको वैसे पर्सनल उसके लिए तो इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो वाला 2 मिनट का है, मैं बता दूंगा. दैट्स नॉट अ टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम. बट जो दूसरा मैक्रो कोडिंग से होता है कि आप कोड बनाते हो एक्सेल में एंड देन यू क्रिएट अ मैक्रो, उसका कोई दैट इज नॉट व्हाट यू एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट विल डू. इनफैक्ट मैं तो, हम लोग एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो भी नहीं क्रिएट करते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो जो क्रिएट होता है वो एक ऑपरेशनल वर्क जो होता है, जो आपको डेली बेसिस पे 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप फॉलो करने हैं, उसको आप यूज करते हो थ्रू मैक्रो में. रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो होता है, you record those steps and then Excel automatically completes that activity or a process. वो macro होता है. तो but अगर आपको उसके लिए चाहिए तो it's a 2 minute kind of thing I can tell you, but that's not too required from a modeling perspective. In terms of schedule, I think again I'm just trying to request everyone कि we need to get the clarification from Damni कौन सा topic क्या schedule हो रहा है, उसके basis पे I think we'll get more clarity in terms of क्या कर रहे हैं. Okay. ठीक है. सो अगर शेड्यूल रिलेटेड है तो आप लोग एक बार धामनी को बोल, मैं ही बोलता हूँ, आपको क्लैरिफाई कर देंगे. जैसे एक प्रेजेंटेशन का है जो आप अभी पूछ रहे हैं कि क्या है, तो आई थिंक शी वुड बी इन अ पोजीशन टू क्लैरिफाई क्या आंसर टॉपिक आने वाला है. दूसरा मैक्रो एक्सेल बोला, और क्या बोला था आपने? पार्ट ऑफ M&A. हाँ, तो वो शेड्यूल में नहीं आया क्या? अभी आपको आएगा शेड्यूल में. तो अगेन शेड्यूल का एक बार दामनी को पूछते हैं कौन सा टॉपिक को कैसे कब है, so that will give you visibility. I think M&A part is pendency from level 3 point of view. M&A, इक्विटी रिसर्च, ये दोनों बाकी है.
ठीक है, दामिनी को आप लोग पूछिए। चलिए इसको खत्म करते हैं। हाँ, आई वाज टेलिंग यू कि sometimes, especially when companies go to campuses where there are large number of applications. Let's assume a company goes to campus and there are large number of applications, and they want to filter out. Let's say suppose 1,000 applications have been received for let's say 2 jobs, and they want to filter out to 20 or 15, 15 or 10 odd students for an interview process. So they will do some screening process. So one of the screening process, again, some company have used in the past is they can give you a kind of an exam which may contain a 10, 20 set of questions, and then probably half an hour kind of thing, and they can ask you to answer those questions. It's pretty similar to an entrance exam that probably would have tried for B schools. So again, there's no fixed pattern, there's no fixed set of topics which they can ask, and they can ask you anything. They can ask you current affairs, they can ask you questions from these logical tricks or mathematic tricks, varying from different topics. So I think the purpose of this is to try and give you flavor of it, try and do couple of questions in terms of from different themes, but it's not, for example, जैसे probability से कोई question आ सकता है, तो मैं आपको probability से भी 1 या 2 question इसमें करा दूंगा, speed से आते हैं, logical relationship से आते हैं, but generally अगर आपको you want to get a grip of it, you want to ensure कि आप उसको solve कर पाए ना limited time, because time उसमें ज़्यादा important होता है, तो थोड़ा सा practice इसमें आपको ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। So ऐसा नहीं है कि 1 या 2 questions है, but the objective here is to give you flavor so that you're prepared कि ऐसी भी questions आ सकते हैं, but generally ये campus recruitment के through आते हैं, where there are large number of application and you need to filter out to a limited set of candidate जिसको आप interview में बुलाओगे, ठीक है। So वो background है very similar to जैसे B schools में होता है, so the number of seats are limited and the application received are pretty high. So how do you narrow down or filter out from those applications received to the number of candidates जिसका PI which is interview करवाना है, and then final selections are done. तो उस background से हम लोग इसको start करते हैं, ठीक है। So the first generally a very common topic that comes generally in these is percentage related questions. So let's try 1 or 2 of these. Let's try first. करिए आप देखिए, पढ़िए first question before I explain. So if length increases, now again, what is length and breadth? So अगर आपका एक rectangle है, ठीक है, so this is your length and this is your breadth. This side is breadth, ठीक है, थोड़ा ठीक से बना नहीं, but it's a rectangle. Rectangle का जो width होता है that is breadth, and जो longest side होती है rectangle की, which is this, that is called as length, ठीक है। Now I know it's very strange because it's something like, especially if you're from a non-mathematic background, तो ये बहुत difficult हो जाएगा, ठीक है। So be very careful, do not, because sometimes students take this in a very different way, and they stop preparing about finance, and they start reading about these mathematics, and they start putting time in this. You probably need to balance out. So again, my suggestion is, अगर कोई company
इस प्रोसेस के लिए जा रही है तो इस पे आप टाइम लगाना व्हेन यू गेट इनटू द प्लेसमेंट प्रोसेस, बिकॉज वेरी फ्यू कंपनीज गो फॉर इट. सो ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग या वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को छोड़ के जब इंटरव्यू है आप इसके पीछे लग जाओ. यू नीड टू probably put a balance out approach अगर ये process company follow कर रही है तो. ठीक है. So coming back to the question, so if the length increases by 10%, breadth increases by 20%, what is the overall percentage change in area? अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे सभी आपको फॉर्मूलेज याद हो. अगर नहीं तो प्रॉब्ली आपको सभी करना पड़ेगा. एंड देयर इज नो लिमिट टू दिस. कोई भी फॉर्मूला किसी भी शेप एंड फॉर्म में ट्रिक में आ सकता है. ठीक है. That's why I said this is little surprising and little unfair, especially if you're not from a mathematics background. But that's the way these organizations do not make the differentiation. ठीक है. So if length increases by 10%, breadth increases by 20%, what is the overall percentage change in the area? And anybody 32. can try 32. ठीक है. और कोई? So one is option A, that is one answer. Anybody else? ठीक है. So length into breadth is my area. Okay. So it says the length increases by 10%. So which means that new length would be 1.10 L. Okay. And breadth increases by 20%. So it is 1.20 B. यहाँ तक कोई doubt? The new length would be 1.1 times and the breadth would be 1.2 times. Hence the new area would be 1.10 L into 1.20 B. यहाँ तक कोई doubt? Which is 1.10 into 1.20, 1.32 L into B, LB. ठीक है. So जो old area था वो LB था, जो new area वो 1.32 LB है. So difference is 1.32 LB minus LB gives you the difference of 32. Hence जो option A है, that becomes your answer. Any doubt on first question? तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो फिर x प्लस में ना होगा? x प्लस 10%. प्लस ही किया ना. 100 में 10% ऐड करूंगा तो 1.10 ही तो आएगा ना. यस. ये प्लस ही तो किया है. हाँ जी. Anything else? ठीक है. एक और ट्राई कर लेते हैं. Second, if the price of commodity increases by 40%, consumption decrease by 20%, find the overall change in the expenditure. Try करेंगे. So this one variable is increasing, another variable is decreasing.
one is increased by 40%, second is decreased by 20%, then what is the overall change in expenditure? Well, ठीक है, बाकी लोग करिए, बाकी लोग भी ट्राई करिए बिफोर आई सॉल्व दिस. Done. At least try करिए, even if it comes out to be wrong, that's okay. But I would request each of you to try so that you know what's your current where do you stand today in terms of how strong or how weak you are. So that gives a visibility of how much time probably you need to spend in case you want to get into this. 12. ठीक है. So commodity increase, price increases. So again expenditure का formula क्या होता है? Expenditure is equal to P into Q. So commodity price increases, so it becomes 1.40 P. Consumption decreases by 20%, so it becomes 0.8 Q. And the revised one is 1.4 into 0.8, which is 1.12. So yes, आपका B answer, which is 12. Okay. So coming to the theme, so what these percentage questions would require from you, first you need to know the formula of that base. For example, जैसे first question area का था, तो आपको rectangle का area पता होना चाहिए. अगर स्क्वायर होता तो उसका एरिया पता होना चाहिए, वॉल्यूम है तो उसका एरिया पता होना चाहिए, सरफेस एरिया तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको फॉर्मूला वो जिस सब टॉपिक के ऊपर कुछ परसेंटेज कंप्यूट कर रहा है, यू नीड टू नो दैट फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन जस्ट बी केयरफुल कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है. जैसे अगर इंक्रीज कर रहा है तो यू विल एड अप इन 100, इफ डिक्रीज कर रहा है तो यू विल डिडक्ट फ्रॉम द 100. ठीक है, जैसे 20% डिडक्ट किया मैंने, वो 0.8 हो गया. एंड देन यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन बैक इनटू द फॉर्मूला, एंड देन जो न्यू वैल्यू है और जो ओल्ड वैल्यू, उनका जो डिफरेंस है वो आंसर. ठीक है, तो ये यू कैन से दिस इज अ ट्रिक, बट दैट्स द वे इट you should be able to handle or solve these percentage related questions. ठीक है. The next type of questions, again, which is very common, is the problems or the questions on age, relationships. Okay. Again, these are more of a logical, more inclined towards the logical approach rather than rather than being inclined towards the more of a quantitative approach. Okay, so let's try the first. So Rajiv's age after 15 years will be 5 times of his age 5 years back. What is the present age of Rajiv? Okay, 2 minutes there. Try karo. Again, same rule. Even if it's wrong, that's okay. But please try before I solve this. Question 1, try kariye.
10. ओके, बाकी लोग भी ट्राई करिए। डन, अदर्स डन। देखो, इसको जनरली व्हेन आई यूज्ड टू क्रैक दिस इन कैट एग्जाम्स, तो मैं अगेन इसके दो तरीके हैं, ठीक है। दी वन इज आप इस ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करें, which I generally prefer not to do, but again one of the approaches this, ठीक है। other is you actually go with the more of a logical approach। तो पहले मैं logical approach आपको बताता हूँ, वो जो ट्रिक होती है, ठीक है। So Rajiv age is 15 years, Rajiv's age after 15 years will be 5 times of his age 5 years back। so say suppose आज राजीव का एज अगर x है, today's age उसका x है, तो राजीव एज आफ्टर 15 years, so x plus 15 will be 5 times of his age 5 years back, is equal to 5 times of his age 5 years back। तो 5 years back उसकी age x minus 5 होगी, which would be 5 times। एक बार ये देख लीजिए, are you comfortable that how we have created this equation? So Rajiv's age after 15 years, Rajiv age after 15 years, इसलिए मैंने x plus 5 कर दिया। So that is x plus 15, and then Rajiv's age will be 5 times of his age 5 years back। So if the present age is x, तो 5 years back x minus 5 हो गया। एक्स प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट एज है। हाँ जी, x present age है। ठीक है। फजलुल, ये इक्वेशन इज इट ओके? कोई डाउट है इसमें? बिकॉज दिस इज द ट्रिक, अगर आप इक्वेशन बनाना समझ लेते हैं तो आई थिंक बाकी तो फिर सॉल्व करना है, वो तो हो ही जाएगा। बट इक्वेशन में कोई डाउट है, चैलेंज है तो बताइए। दिस इज व्हाट। नो सर। Now if you solve this, so x plus 15, and if I open the bracket 5x minus 25, so it will now be so if I open the bracket, so it will 5x minus 25, ठीक है। If I bring all the variables with x on the one side and all non-x variables on the other side, so it will be
signs will change. So if I take 25 towards the LHS of the equal to, and I take X towards the RHS of the equal to, and this is what the equation will be. (25 plus 15) becomes your 40. 40 is equal to 4x, then x becomes 10. Okay, so yeah, I think somebody said 10 earlier, so yeah, that's right. Any doubt? Okay, so that's the one way which is more of a logical approach to solve this. Another trick is you go by the options. So for example, let's assume if you go by 10th, which is A option, so Rajiv age after 15 years, so after 15 years उसकी age 25 हो जाएगी अगर मैं 10 से start करता हूँ, and 5 years back उसकी age 5 होती, and 5 into 5 that becomes 25, ठीक है, which becomes 5 times of the 10 plus 15 years age. ठीक है, बट इसमें चैलेंज ये है कि अगर आपका जो वो ऑप्शन है वो डी होता तो आप ए बी सी ऑप्शन यूज करने में, हिट एंड ट्राई करने में आप टाइम वेस्ट कर दोगे, सो थोड़ा सा वो चैलेंज है, बट अगेन आई लीव दैट टू यू, बट आई जनरली प्रेफर दिस लॉजिकल रादर देन पिकिंग अप दोस ऑप्शंस. Any doubt? Anji, any question in this? ठीक है, सेकंड ट्राई करिए, क्वेश्चन सेकंड ट्राई करिए. $30. Anji, 30. okay. So that's first.
आंसर व्हाट अबाउट अदर्स? ट्राई करिए, another minute or so please try करिए. Done? 30 it is. Yes. चलिए, so I think we got 230. ठीक है. So Parul, Deepak, if either of you could explain the approach, your approach. Parul, आपसे करते हैं. 30 कैसे निकाला आपने? I created the equation First equation बोलो. x minus y is equals to 16, x being the age of elder one. करेक्ट. सो इसको अगर मैं x ले लेते हैं, एल्डर वन को, ठीक है, और यंगर को अगर हम y ले लेते हैं, ठीक है. सो क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस 16 है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x माइनस वाई होना चाहिए, y माइनस एक्स होना चाहिए, बिकॉज आपने एल्डर को x लिया है, तो ऑफ कोर्स x वुड बी should be a bigger value vis-a-vis y. So इसलिए जैसे पारुल ने कहा, तो फर्स्ट इक्वेशन becomes x minus y is equal to 16. So that is your first equation. ठीक है? Yeah, Parul, go ahead. So as the second statement says, the equation would be x minus 6 is equals to 3 into y minus 6. Yeah. So the next statement says 6 years ago, the elder one. So जो x आज है वो 6 साल पहले x minus 6 होगा. ठीक है. This elder one would be 3 times as old as the younger one. ठीक है. और y भी 6 years पहले क्या होगा? वो भी y minus 6 हो जाएगा. बट ये 3 टाइम्स है, तो ये into 3 होगा. 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल x एंड y, दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा. So anybody who's not clear how to solve these x and y के लिए, or should I explain that? x का एक 3 टाइम्स है तो x 3x न हो जाएगा. Sorry, x 3x न हो जाएगा, 3 टाइम्स ज्यादा है तो 3x न हो जाएगा यहाँ पर. If 6 years ago, ठीक है, 6 साल पहले, x minus 6, the elder one will be 3 times as old as younger one है ना, फर्स्ट रूल. So 3 times किसका है? यंगर का है कि ओल्डर का है? ओल्ड का. ओल्ड का नहीं है, यंगर का. एल्डर का नहीं है, यंगर का है. यंगर से 3 टाइम्स. Rahul, this is what you created, correct? Yes. हाँ, सॉरी, फिर बोलो. यंगर से 3 टाइम्स ज्यादा है तो यंगर से 3 टाइम्स ज्यादा है तो x माइनस 6 जो है तो 3 टाइम्स ज्यादा ना हो जाएगा. एल्डर और ये यंगर, तो ई और y लिखता हूँ, ठीक है. मैं एल्डर इज ई, यंगर इज, तो अब एल्डर इज इक्वल टू 3y है कि y इज इक्वल टू 3e है?
तुम्हारे हिसाब से क्या है? According to you, which is the second equation requires what? E is equal to 3y or y is equal to 3e? y is equal to 3e. इसको ध्यान से पढ़ो दोबारा, सेकंड इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो दोबारा. 6 years ago को छोड़ दो, इसको छोड़ दो अभी के लिए, इसकी जरूरत नहीं है. अब ये पढ़ो, द older one is, sorry, elder one is e. elder one will be मतलब equal to, will be 3 times of what? 3 times of younger है ना, तो younger तो y है, तो 3y होगा ना. y is equal to 3 कहाँ से निकाला आपने? Why you are under impression that y is equal to 3 होना चाहिए? एल्डर जो है वो 3 गुना ज्यादा है उससे, किससे? यंगर से. Correct? ये younger का 3 गुना है ना. यंगर अगर y है तो एल्डर जो होगा 3y हो जाएगा ना. तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, e is equal to 3y होना चाहिए, यही तो बोल रहा हूँ. आप यस पहले सर. ये बोल रहे थे, कि y is equal to 3 होना चाहिए. हाँ हाँ. ठीक है, तो ये गलत है, ये वाला सही. फजलू ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर, सही है. ठीक है. Anybody else? Are we good with this? Last time, any question? Any doubt in the second question? ठीक है. So, in case no, third question try करिए. Try third question now. Forty. 40. Okay. What about others? बाकी लोग भी करिए. Then we'll try.
So Rohit was 4 times as old as its son 8 years ago. So R minus 8 S minus T का first equation. So then after 8 years, present is R लिया है. Then R plus 8 S plus 8 will be twice. Yeah, ये भी ठीक है. Yeah. So both these equations are right. आप दोनों को solve So, करिए. उसका Yeah. आफ्टर 8 इयर्स जो कह रहा है वो तो प्रेजेंट डे ही हो जाएगा ना. प्रेजेंट कैसे हो जाएगा? हमने प्रेजेंट को R लिया है ना. कैसे सर? रोहित वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 8 इयर्स एगो. 8 साल पहले वो की बात वो कह रहा है. या फिर आपने वहां से R फिर स्टार्ट. R क्या लिया? अरे R क्या लिया है? मैंने यार तो कुछ नहीं लिया था. मैंने एगो से स्टार्ट किया और फिर वो प्रेजेंट पर ला स्लो करके आज R और S वर्तमान है और वो दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर. Yeah. तो अगर प्रेजेंट R लिया है तो 8 साल पहले जाने के लिए R माइनस 8 करना पड़ेगा और प्रेजेंट से 8 साल आगे जाने के लिए फ्यूचर में जाने के लिए R प्लस 8 करना पड़ेगा. मजदूर यही ट्रिक है इसमें. मजदूर यस सर. तो इसको जो सॉल्व करके एस तो माइनस में आ रहा है सर. सॉल्व कर लेते हैं. माइनस में तो नहीं आना चाहिए. So if I see this equation, so the first equation would be technically your R minus 8 is equal to 4S minus 32. R minus 8 is equal to 4S minus 32. और second equation क्या था? R plus 8 is equal to 2S plus 16.
-8, so it is -32. तो -2s is equal to 32 आ रहा है, so माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2s is equal to 32, s becomes 16. कहाँ आ रहा है माइनस साइन फॉर 16 आंसर आ रहा है इसका. सर यहाँ बीच वाले थे साइन को प्लस क्यों लिया? उसको भी तो माइनस लेंगे ना. कौन से को? यहाँ साइन जो है प्लस को जो ले रखा है उसको भी माइनस लेना चाहिए ना. Which one? माइनस. हम्म. Which plus sign? साइन साइन जो दे रखा है माइनस प्लस माइनस. क्यों प्लस क्यों लूंगा? मैंने सबके साइंस चेंज करे हैं ना. सेकंड इक्वेशन में I have reversed signs for all the variables. So प्लस आर को माइनस आर कर दिया, -2s को प्लस कर दिया है, और +8 को -8 कर दिया. हाँ. क्लियर सर. हाँ जी. Any other doubt? हाँ जी. Are we good? Guys, are we good with this? चलिए. Now, so now these are your formulas for cuboid, cube, cylinder. ठीक है. So अगर आपको formulas नहीं पता है तो ये पता होने चाहिए, at least to solve questions if these comes, if those questions are put in the cube, cuboid, cylinder. ठीक है. So cuboid is very similar to rectangle. It's just that cuboid may it's like a rectangle in which you can fill the water. Okay, so that's why you have a volume. Volume is something where आप उसके अंदर एयर या वाटर भर सकते हो, उसको वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है. सरफेस एरिया होता है जो उसके आउटर जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स के जो आउटर एरिया होता है उस पे अगर आपको पेपर लगाना हो तो कितना पेपर लगेगा, दैट इज योर सरफेस एरिया. एंड डायगोनल इज उस बॉक्स. सो अगर ऐसा बॉक्स है तो डायगोनल मींस दिस लेंथ. ठीक है. बट ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए. जैसे अभी हमने किया था स्टार्टिंग में, परसेंटेज पे क्वेश्चन था, उस पे आई थिंक सरफेस एरिया पे क्वेश्चन था. सो वो लेंथ इनटू ब्रेड था, वो रेक्टेंगल का था. ठीक है. सो क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगल, क्यूब इज स्क्वायर का बॉक्स, एंड सिलेंडर इज something like this. If I can
let me, like a pipe, ऐसा शेप कुछ होगा, ठीक है। In cylinder you have this pi, this sign is pi, volume is equal to pi r square h, r is your radius, so आपका जो सिलेंडर है इसका जो इनर विड्थ होता है उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, और डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, which means radius is equal to half of diameter, आप whichever way you want to take आप देख सकते हैं। और ये जो सिलेंडर का ये जो इसको ये हाइट होता है आपका, this is your height and this is your r, good out। हेलो। हाँ जी, are we good with these? पाई भी मैं बता देता हूँ, पाई इज 22/7, दिस इज पाई, आपको ये साइन ये दिख रहा है, ठीक है, सो दिस इज 22/7, तो जहाँ ये लिखा हुआ है आपको 22/7 या 3.14 अप्रोक्सीमेटली आप वो वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट? हेलो हेलो या फजलू, गो अहेड। सर, एक बार परसेंटेज वाला स्लाइड देखा ना। परसेंटेज जो फर्स्ट को यस हमने वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन करे थे वो, यस सर, यस सर, यस सर। बोलिए। थर्ड क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इफ रेडियस इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट बाय 30%, तो ये भी तो सिलेंडर का ही है। सो Do we require pi value in this? बिना पाई के सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर? आप क्वेश्चन 3 में इशू क्या, मुझे समझ नहीं आया, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है पहले तो वो ही नहीं समझ आया मुझे।
तुम स्टेटमेंट पूछ नहीं रहे नहीं हो, क्वेश्चन तुमने कहा सिलेंडर का है, तो हाँ दैट्स अ फैक्ट, सिलेंडर का वहाँ लिखा हुआ है। तो सर ये सॉल्व कैसे होगा? तुमने ट्राई किया है? नहीं नहीं, मैं तो वैसे अभी क्वेश्चन देखा हूँ ट्राई सिलेंडर का किया है, जो उसमें। नहीं ट्राई किया, करेक्ट। तो अगेन वी गो बैक टू द सेम एटीट्यूड कि सर आप सॉल्व कर दो, मैंने तो ट्राई किया नहीं है, ठीक है। बट अगेन क्योंकि वो आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, बट अभी आप खुद रियलाइज करोगे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने भी नहीं किया। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम का? मजदूर? पाई स्क्वायर एच। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को अलग रहने देते हैं और आर स्क्वायर एच को लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब बताओ कहाँ पे अटकते हो? कहीं नहीं अटकोगे आप। रेडियस इंक्रीजेस बाय 10%, नया रेडियस क्या हो जाएगा? 1.10 हो जाएगा, हाँ या ना फजलूर? 1.10 आर हो जाएगा इसका स्क्वायर, एंड यस न्यू सर। height by 30%, and new height would be 1.30 h। हाँ या ना? और यस पाइप सर। तो चल ही रहा है। तो नया सरफेस एरिया ये हो, सो सरफेस है, वॉल्यूम है। न्यू वॉल्यूम एरिया वुड बी दिस पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमने 1.10 आर रखा है, तो ये तो इससे ऐसी कैंसिल कर दो, इग्नोर कर सकते हो। दैट्स व्हाई दीपक जो पूछ रहा था कि इसकी जरूरत है, वो जरूरत नहीं है, दोनों जगह आर पाई पाई है तो उसको मैं इग्नोर मार सकता हूँ, ठीक है। सो अब 1.10 का स्क्वायर क्या होता है? So this will be 1.21। this is 1.10 raised to power 2 into 1 point कितना था? 1.30। 21। ये सॉल्व करना है आपको। अब बता दो इसमें क्या सॉल्व नहीं हो रहा था आपसे, बट हमने ट्राई ही नहीं किया। परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस में हम ये 100 एज्यूम करके वो सॉल्व करेंगे। 7.3 आंसर आएगा, ए आंसर है इसका। हाँ फजूल बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में हम 100 एज्यूम करके कंसीडर करेंगे। हाँ वही तो होता है, वही तो पर ट्रिक है। फर्स्ट जितने क्वेश्चन कराए थे पहले उसमें 100 करके ट्रिक करी ना। हम्म। तो मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा इसमें थर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में नहीं था। आई वांट टू अंडरस्टैंड, आपने थर्ड क्वेश्चन जो पूछा उसमें आपको क्या डिफिकल्टी लगी? थर्ड क्वेश्चन में आपने कहा कि मुझे नहीं होगा ये। अब जो हमने करा है उसमें से क्या चीज है जो हमने पहले नहीं करी थी? हाँ जी फजलूर, अब आंसर करिए। फजलूर आई एम वेटिंग। कुछ नहीं था सर। इसलिए मैं बार बार सबको, आप लोग को रिक्वेस्ट करो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। एंड व्हेन यू ट्राई, इवन इफ द आंसर कम्स आउट टू बी रॉन्ग, यू विल कम टू नो के मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करना पड़ता है व्हेन यू वांट टू गेट a mastery of you want to get a grip hold of these kind of questions. Without solving you will not be able to understand, you will not get the confidence. So पहले होता है accuracy, आप at least अपने आंसर को your first target should be that my answer, whether my answer is right or wrong. Once you start getting a confidence, yes, your answer is getting on the accurate side, then
वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्पीड. अब स्पीड ही कोई टेक्निक नहीं है. सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे और फटाफट कैल्सी पे, अब अगेन डिपेंड करता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैल्सी अलाउ करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैल्सी अलाउ नहीं करती. तो अगर कैल्सी नहीं है आपको अलाउड, तो आपको सब ये, अब ये बहुत को डिपेंड करता है आपका हिस्टोरिकली, आपके पास मैथमेटिक्स थी, अगर थी तो आप कितने कंफर्टेबल थे नंबर से, तो आप बहुत जल्दी इसको कर पाओगे. अगर आप हिस्टोरिकली या इन योर स्कूल डेज इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद नंबर्स, तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा. तो ये आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए कि मैं कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लूंगा, कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लूंगा. ठीक है. एंड उसके हिसाब से अगर ये पेपर आता है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपको अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्लान करना पड़ता है. दैट इज व्हाई देन ओनली यू वुड बी able to make an attempt of these kind of an filtering process. So honestly, अगर आप मुझसे पूछोगे, when we go to campuses and we use this filtering process, so generally the intent is not to test whether the candidate know these mathematical tricks or not, because honestly आपको पता है, मुझे पता है, real life में इसका कोई use नहीं है. I'm not going to hire you to calculate the volume surface area for our clients. Right? That's not our bread and business. Okay, but the intent of still putting those candidates into this situation is to see first how does a candidate have been able to manage the time. Second, stress management, because it puts a stress. Correct? जैसे मैं timer रख दूंगा आपके सामने और ये set of questions रख देता हूँ, a lot of students start getting into panic mode. ठीक है. सो टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप किस तरीके से पैनिक हैंडल कर सकते हो. ठीक है. एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स टू सी आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपका हिस्टोरिकली व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस, हाउ स्ट्रांग यू आर फंडामेंटल. तो ये ब्रॉड 3 पिलर्स होते हैं जो मैं जनरली देखने की कोशिश करता हूँ अगर 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 मैं कैंपस विजिट कर रहा हूँ एंड आर एचआर डिसाइड्स टू फॉलो दिस एज रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पार्ट का, एज अ पार्ट ऑफ दिस. इफ दिस इज वन ऑफ दोज filtering process in the recruitment process, then my thought process is toward these 3 segments to see candidates कैसे इनमें score करते हैं. ठीक है. और कुछ फसलो before we, so is that okay before I go back to the topic where we were? Yes sir, okay. Similarly, you have cone, sphere, hemisphere. ठीक है. So इन सब के भी फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको. अगेन जो मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एंड देयर कैन नेवर बी एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. ठीक है. तो क्या वो किसी का भी पूछ सकता है वो. ठीक है. इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना करंट अफेयर्स में आपका कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं होता है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी सेगमेंट कैन कम इन. तो वैसे ही, बट जो मैं दिखा रहा हूँ ये जनरली बहुत ज्यादा आपका पोर्शन कवर कर लेते हैं. तो इवन इफ यू गेट होल्ड ऑफ दीज फॉर्मूलाज जो आपको इसमें आपके एलएमएस में है, ये सेम एग्जैक्टली आपके एलएमएस में है. यू कैन go at your pace, you can look at these, you can download or note down these later. So even if you at least are able to do this, this should manage your 80 to 90% of the stock, which is very good to clear these. And again, my strategy always, whenever I appeared for these set of exams, be it CAT or be it other than CAT, is never to be into the top. Again, that's my personal approach of attempting this. My approach or target was always to clear the cutoff which I need to go to the next round. Okay. So again, that's an individual choice, but I'm just trying to tell you, इससे
इसमें हमें 100 आउट ऑफ 100 लाने का टारगेट से कुछ खास अचीव नहीं होने वाला। बट अगर मुझे पता है कि उस कंपनी का कट ऑफ लेट्स 92 है, 92 का मतलब है कि 92 से ऊपर जो कैंडिडेट स्कोर करते हैं आउट ऑफ 100, लेट्स अज्यूम इफ 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो उनको नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड में बुलाएंगे। तो माय टारगेट इज टू क्लियर 92 rather than reaching out to 100. ठीक है, so again, as I said, the intent of these set of questions or aptitude tests is not actually to test your mathematics knowledge, is to see as a candidate how you plan, how do you manage your time, what strategy you bring in. थोड़ा सा हम उस साइड पे ज्यादा those are the pillars through which you're trying to pillars basis which you're trying to assess the candidate rather than actually genuinely testing your mathematical knowledge. Okay, so the next set of questions could be find the volume, find the surface area. ये मैं नहीं कराऊंगा, आपको फॉर्मूला बता दिया, एग्जैक्ट फॉर्मूले में डालना है, चलो एक करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, find the volume, curved surface area, total surface area of a cylinder with diameter base of 7 centimeter and height 7 centimeter. अभी हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा, ठीक है, सिलेंडर का ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच है, मेरे पास डायमीटर मुझे गिवन है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस बिकम्स 3.5 सेंटीमीटर, हाफ मैंने बताया था अभी। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बिकम्स माई एच। सो 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 40 इंटू पाई, वो सॉल्व करोगे वो आंसर होगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन द फर्स्ट क्वेश्चन? सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल सरफेस का भी लिखा हुआ है, आर और एच है, सिर्फ आपको वैल्यू डाल के कैल्सी में या विदाउट कैल्सी डिपेंडिंग आपकी कौन सा whether you're allowed or not, आपको सॉल्व करना है। Any doubt in volume, surface area? This is pretty straightforward as long as you know the formula. और फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो वैसे ही सॉल्व नहीं होने वाला, इसमें ट्रिक नहीं है, जस्ट कि आप कितना जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हैं, वही that's the only I think important. हाँ जी, any doubt? Are we good with this? ये हो जाएगा वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। गाइस, हाँ या ना? यस सर, हो जाएगा सर। ठीक है, next theme or the topic through which a lot of questions are being asked is time and work. So let me clear this. Yeah. So first question, try करिए. Can you try first question?
9 days, sir. Nine days, sir. हाँ जी, डन। Anybody? Anybody wants to try? क्या answer? Sorry, 9 days. 9 days. Okay. So 9 the answer is 9. Okay. So I think we got another 9, but I heard another answer. I think Shrikant, आपने क्या बोला था? 9 or something else? 9 hours a day. Sorry? 9 hours a day. Okay. ठीक है. ठीक है. So हाँ रोहित, कैसे किया? So एक side 15 multiplied by 10, 15 में take 10 days, working 12 hours a day. और दूसरी side में 10 men complete the job in 12 days और number of hours को extra किया, तो सब cancel out of 9 आ गया. Yeah, correct. That's right, Apro. So 15 men take 10 days to complete the job in 12 days. So these are your man hours. 15 into 10 into 12, these are your man hours, is equal to how many hours a day? Let's assume उसको x ले लेते हैं. 10 men into 20 days. ठीक है. So ये 10 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, तो x जो है वो आपका आंसर हो जाएगा. हाँ जी, anybody doubt in this? Any doubt in this? टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में सारे ऐसे करने आपको मैन आवर्स निकालना होता है और ये मेथड यूज करना होता है. आर वी गुड विद दिस?
हाँ जी, आर वी गुड विद दिस? कोई डाउट है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट वेरी कॉमन टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला या जो अप्रोच होता है वो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन? सो अगर मेरे पास लेट्स अज्यूम 10 रेड बॉल्स हैं और मुझे एक बॉल ड्रॉ करनी है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, मेरे पास 10 रेड बॉल्स हैं और मेरे पास 10 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल? सो रेड बॉल्स कितनी है? 10 और टोटल बॉल्स कितनी है? 20। दिस इज व्हाट आई मीन this is what I mean when I say favorable divided by total. ठीक है, कोई डाउट? Similarly, when you're throwing a dice, तो balls, dice, generally इसके around questions आपको आते हैं। So for example, suppose एक और होता है जैसे if you're throwing two dice, तो कितने कॉम्बिनेशन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो आपका सम है वो सम लेट्स अज्यूम 6 आ जाए। सम इज 6। जब आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो सम 6 कैसे निकालेंगे? सो सम 6 आने के लिए 6,0, एक डाइस में 6 आए, एक में 0 आए, ये पॉसिबल नहीं होता। फिर दूसरा होगा 5 and 1, फिर होगा 4 and 2, फिर होगा 3 and 3, फिर होगा 2 and 4। ये ध्यान रखना है 4 and 2 और 2 और 4 अलग अलग होता है प्रोबेबिलिटी में। एंड देन यू हैव 1 and 5 एंड देन यू हैव 0 to 6। ये वाला भी रूल्ड आउट हो गया, ये नहीं हो सकता। तो ये फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो ऐसे अगर जब डाइस की क्वेश्चंस होते हैं उसमें सम के लिए आप ऐसे फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। तो 5 1 1, सो 1 2 3 4 5 आउटकम्स फेवरेबल हो सकते हैं 6 के सम आने के। ऐसे जो भी सम निकालने को बोले उसका आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सम जो है वो लेट्स अज्यूम 9 है, तो 9 का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? आप 6 से स्टार्ट करिए, 6,3, ठीक है, देन 5,4, देन 3,6, ठीक है। अब अगर आप 2 पे आ जाएंगे तो 2 के साथ आपको 7 चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपके 3 कॉम्बिनेशन 9 का सम बना सकते हैं, सॉरी 4। 4,5 भी तो है। 4,5 भी होगा। 9 का सम है, 7 का नहीं है। 2,5 कैसे होगा? टू कॉमा 5 कैसे होगा? सेवन आ जाएगा, वो 7 थोड़े होता है डैश में। अरे he said 4,5 only. Okay. Okay. I heard 2,5. So yeah, 4,5 करेक्ट है। ये 4 फेवरेबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो डाइस वाले क्वेश्चन है
उसका आपका फेवरेबल आउटकम निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। जनरली बॉल तो डाइस के बीच में रहता है। ठीक है, एनी डाउट इन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन? ये नेहा का है? हाँ जी, एनी डाउट? जो नेक्स्ट जो आपका अगेन वेरी कॉमन टॉपिक होता है स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। So aeroplane covers a distance at a speed of 20 to 40 kilometers per hour in 5 hours. To cover the same distance in 12.3 hours, it must travel at what speed? ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में लगा के, आपको स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो इस फॉर्मूले लगा के पहले आप डिस्टेंस निकाल लोगे और फिर वही डिस्टेंस के लिए आपको टाइम दे रखा है, तो कितना स्पीड है वो आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, डिवाइडेड बाय टाइम। सॉरी पारुल, The formula is speed is equals to distance upon time ना। सॉरी मैंने इनटू कर दिया क्या? या सॉरी, माय बैड। या थैंक्स। ठीक है, सो फिर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से थीम होती है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन। कि आपको ऐसे कोई ग्राफ दे दिया है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपको दे रखा सेल्स ऑफ बुक्स फॉर 6 ब्रांचेस, एक पब्लिशिंग कंपनी का, कुछ 2 साल का। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल सेल्स इन ब्रांचेस B1, B3, B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर्स। तो आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल B1, B3 एंड B5। सो ये B1 है, ये B3 है, ये B5 है। तो B1 में आप देख रहे हो कितना है, 80 और 100 से थोड़ा सा ऊपर। तो अगर मैं 105 के आसपास लेता हूँ तो 80 प्लस 105, then B5 is, sorry, B3 is this, B3 is again close to 90 and 110 types, and then B5 is this,
विच इज अगेन लोअर देन 80 से 75 के आसपास है, और ये 95 के आसपास है। तो इनका टोटल करके जोन सा इसमें नियरेस्ट मैच होता है वो आपको पिक करना है। तो इस तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको ग्राफ या कोई पाई चार्ट दे देते हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट ये पाई चार्ट दे रखा है, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, ट्राई करिए क्वेश्चन, मैं सॉल्व करता हूँ। ट्राई करिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। हाँ जी, have you gone through this? तो आपको एक पाई चार्ट, या गुड, सॉरी, ऑप्शन सी राइस व्हीट एंड बार्ली। हाँ ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर भी देख लेते हैं। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज दे रखा है फॉर डिफरेंट फूड क्रॉप्स, एंड विच कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स 50%। ठीक है, सो 50% अगर आप देखोगे तो रफली राइस और अदर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो वो 50% के आसपास बन जाएगा, बट यहाँ पे 3 की कॉम्बिनेशन है, 2 के नहीं, तो राइस और अदर ये नहीं होगा। ठीक है, सो सी अगर आप बोल रहे हो तो सी चेक कर लेते हैं। सी राइस 72 है, तो मुझे क्लोज टू 180 के आसपास चाहिए। तो 72, wheat is how much? Another 72. ठीक है, एंड barley is 36। हाँ, तो ये आपका डायरेक्ट 180 डिग्री का क्लोज या 50% के आसपास आ रहा है। यस, सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, पारुल आप कुछ पूछ रहे थे या सेम आंसर ही बता रहे थे आप? पारुल
Yes, the same answer. ठीक है, सो ये है। एंड थोड़ा सा प्रिपेयर, ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स का बताया है। ठीक है, डिपेंडिंग आप कौन से टॉपिक में स्ट्रांग है, कौन से में वीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना रिस्पेक्टिव टॉपिक में, अगर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल समबडी बिलीव्स कि उसको डेटा इंटरप्रिटेशन में वो वीक है, तो उसके ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है। ये सब क्वेश्चंस आपके एलएमएस पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने आपको भी दिखाया। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है? अच्छा पारुल, आपने बोला था कि वो प्लेसमेंट, तो आपको कहीं और डायल इन करना है या वो इसी डायल में डायल इन करना है? जस्ट आस्किंग, क्योंकि आपको लॉग आउट करके I'm और तो not डायल sure, क्योंकि yeah, I'm not sure. I've just pinged Damini if she says anything. So let's, because she अच्छा, pinged in the group only that you all have, it's compulsory to join. There is a ओके, placement assistance call. कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है, वो शायद यही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दैट्स ओके। हाँ, कुछ और क्वेश्चन डाउट है किसी को? ये सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमने पूछा, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है तो बिफोर बताइए, बिफोर वी एटलीस्ट आई रैप दिस पार्ट ऑफ द सेशन। हाँ जी, एनीबडी, एनी डाउट? So we were told that that previous Sunday there was a evaluation, ओके but it was postponed. I want to ask, it will be conducted tomorrow. सर, वो आपको दाम नहीं बताएगी, शेड्यूल है मुझे आज के सेशन का है, तो आपका एग्जाम कब है, क्या है, वो दाम नहीं आपको बताएगी, आपका शेड्यूल जो भी है। आपको शेड्यूल आया होगा ना श्रीकांत? नहीं सर, कोई आया शेड्यूल कुछ? नहीं आया है। आज के सेशन के लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं आया था आपको? कम्युनिकेशन नहीं आया था। पारुल, इज दैट राइट? No, we have got the email, aptitude session, and tomorrow is the evaluation. श्रीकांत, आप बोल रहे नहीं आए, ये बोल रहे आए हैं, मैं तो मेरे पास में ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आज का सेशन का कुछ नहीं बताया गया था। आज का सेशन का सिर्फ ये बताया गया था कि 9:45 से ये प्लेसमेंट कॉल होगा। यही था स्टेटस हमारा भी है। ईमेल आया है वेडनेसडे लेट नाइट। हम लोग के पास मेल भी नहीं आया है। मेल भी नहीं पहुंचा है। एक तो वैसे ही व्हाट्सएप ने उधर सबको ब्लॉक कर रख दिया। व्हाट्सएप में ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दी गई, वहां पे भी कुछ नहीं पूछ सकते हम लोग। Hello, hello. यस मैम। Am I audible? Yeah, The placement call is going on because I've logged in there, so they are asking to join. ओके, ठीक है गाइस, तो आप लॉग आउट करके वो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, Where to join, Megha? हेलो, Sorry, you asked something? Where we need to we join? don't You can just click on that link that provided by the Damini last week. So you will find that link directly connected to the Google Meet. so Group. आप लोग हाँ join कर लीजिए जो प्लेसमेंट का कॉल है। Thanks, थैंक sir.